Good morning dear students. Welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Dear students, we are discussing power plant engineering. The subject code is KME 076. At present we are discussing nuclear power plant. So, in total this is our 28th lecture. Today we will discuss liquid metal cooled reactor and fast breeder reactor. So, the first of all we will discuss liquid metal cooled reactor. Friends, we have already discussed about reactors. What are the reactors, what is the moderator, what is coolant, what are the functions of moderator and coolant, what is happening in the reactor. We have already discussed about it, right? अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था उस समय हमने वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इधर हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर, प्लेन वाटर या और यू कैन से ऑर्डिनरी वाटर plays the role of moderator as well as coolant, right? But here instead of using water we are using sodium graphite, in which graphite works as moderator and sodium in liquid, that is why it is known as liquid metal. Sodium in liquid state works as coolant, right. So, liquid metal reactor is also known as sodium graphite reactor. So, friends ये ध्यान रखें कि sometimes SGR और sodium graphite reactor के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. So, whenever there is a question regarding SGR or sodium graphite reactor or liquid metal cooled reactor, all are the same. So, आपको यही लिखना है, liquid metal cooled reactor यही लिखना है, right? I told you in the liquid metal cooled reactor sodium works as coolant. ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर coolant water नहीं है, ध्यान रखिए coolant water नहीं है, as well as moderator भी water नहीं है. देखिए graphite works as moderator. मॉडरेटर का फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को, राइट. सो इट एक्ट एज ए ब्रेक, इट एब्जॉर्ब द काइनेटिक एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू हीट एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को आप कन्वर्ट कर, जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में, राइट. सो मॉडरेटर क्या होगा, मॉडरेटर हीट अप हो जाता है. सो मॉडरेटर को कूल करना है, ठंडा रखना है, टेम्परेचर कम करना है. सो वी आर यूजिंग अ कूलेंट. हियर सोडियम इज ए कूलेंट. अब देखिए सोडियम कूलेंट का काम कब करेगा, व्हेन इट इज़ इन लिक्विड और इट इज़ इन गैसेस स्टेज. सो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सोडियम को. वी नो सोडियम बॉयल्स एट 880 डिग्री सेल्सियस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट सोडियम इनटू लिक्विड स्टेट बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम. सोडियम को इनिशियली मेल्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम और सम एक्सटर्नल हीटिंग सिस्टम, and then we pressurize this liquid sodium up to 7 bar. 7 बार पर इस liquid sodium को हम प्रेशराइज करते हैं, राइट. प्रेशराइज क्यों किया हमने कि whenever we are doing pressurize the boiling point of sodium will high. तो ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे P is directly proportional to T, so whenever you are increasing the pressure temperature will be high. ठीक है. The liquid sodium is then circulated by the pump in the primary circuit. अब फ्रेंड्स मैंने कहा प्राइमरी सर्किट, एज एंड व्हेन आई एम सेइंग प्राइमरी सर्किट इट मीन्स देयर विल बी ए सेकेंडरी सर्किट. यस और नो? यस, देयर विल बी ए सेकेंडरी सर्किट. सो आई विल शो द डायग्राम so that you can see the primary circuit as well as secondary circuit. You can see the diagram. In this diagram dear friends there is a reactor. So reactor के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिएक्टर के बारे में पहले काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. सो रिएक्टर के अंदर क्या होता है, जल्दी से एक बार रिकॉल कीजिए. केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस वेयर हैवी मेटल कन्वर्ट इनटू लाइटर मेटल्स, राइट. न्यूक्लियस टूटते हैं यहाँ पर, राइट. ठीक है. अब देखिए इसके रिएक्टर के अंदर हमारे पास ग्रेफाइट होता है. ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट एक्ट एज ए मॉडरेटर, इट विल एब्जॉर्ब द हीट. सो ग्रेफाइट हीटअप हो जाता है. ग्रेफाइट को कूल करने के लिए वी आर यूजिंग लिक्विड सोडियम. नाउ ये जो सोडियम है, ये देखिए ये सोडियम यहाँ से आया, देयर इज ए हीट एक्सचेंजर. इसको हमने नाम दिया है प्राइमरी हीट एक्सचेंजर क्योंकि आई टोल्ड यू दिस इज प्राइमरी सर्किट. सो लिक्विड सोडियम इज इनसाइड द पाइप्स, यू कैन सी
and after giving its heat to the sodium potassium, this liquid sodium will come back to the reactor with the help of a liquid sodium pump. ठीक है, this is primary heat exchanger. Then whenever we are saying primary heat exchanger or primary circuit, definitely there will be a secondary heat exchanger as well as secondary circuit, right. So you can see this is a secondary heat exchanger. In there is a sodium potassium circuit. Again sodium potassium is closed in the pipes, conduit in the, it is not open. So this sodium potassium is in the pipe and it is flowing continuously. So in the primary heat exchanger, this sodium potassium absorb the heat from the liquid sodium and gives the same heat in the secondary heat exchanger to the water. ठीक है, वाटर को क्यों दिया इसने? सो दैट वाटर कैन कन्वर्ट इनटू द स्टीम. अब देखिए इसको एक पंप से रोटेट कर रहे हैं. दिस पंप इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप. इस पंप से इसको रोटेट कर रहे हैं, राइट. नाउ in the second heat exchanger you can see there is another circuit in which water is converted into steam, then it expands into the steam turbine. After expansion into steam turbine, it passes through the condenser where the wet steam, or you can say hot steam or wet steam get condensed, and that condensate is circulated again to the secondary heat exchanger with the help of a feed water pump, right. अब आप कहेंगे सर इतने सारे हीट एक्सचेंजर की, इतने सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सर्किट की ज़रूरत क्या पड़ी, राइट. ज़रूरत ये है, देखिए इन द प्राइमरी सर्किट देयर इज ए लिक्विड सोडियम. नाउ लिक्विड सोडियम इज ऑल्सो ए रेडियो एक्टिव. एट एलिवेटेड टेम्परेचर ये जो सोडियम है ये रेडियो एक्टिव हो जाता है, नंबर वन. नंबर टू, बिकॉज दिस लिक्विड सोडियम इज कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मॉडरेटर, राइट. सो इट विल बी रेडियो एक्टिव. दैट्स वाई इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. और दूसरे क्या है कि जो सोडियम होता है इट इज़ हाईली रिएक्टेड विद एयर एज वेल एज वाटर. सो एयर और वाटर के कांटेक्ट में इसको लिक्विड सोडियम को नहीं ला सकते. क्लियर है ना, राइट. दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना ला करके हमने इसको सोडियम पोटेशियम के कांटेक्ट में लेकर के आए, और सोडियम पोटेशियम की हीट को हमने आगे कन्वर्ट किया वाटर के थ्रू स्टीम में. देखिए नाउ the sodium become radioactive while it passes through the core and react chemically with water. Therefore, heat absorbed by sodium is transferred to secondary circuit or secondary coolant which is sodium potassium in the primary heat exchanger, which in turn transfer the heat in the secondary heat exchanger which is also called steam generator. जो secondary heat exchanger उसको हम steam generator भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा. Secondary heat exchanger is also known as steam generator, right. Water leaving the steam generator is converted into superheated steam up to temperature of 540 degree Celsius. ध्यान रखिएगा कितना टेम्परेचर है, रिमेंबर 540 डिग्री सेल्सियस तक स्टीम का टेम्परेचर हो सकता है. एंड दिस स्टीम इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. कैसे पावर जनरेशन करेगी, इट विल एक्सपेंड इन द टर्बाइन. और टर्बाइन में क्या होगा, स्टीम एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी. और टर्बाइन से हम क्या कपल करते हैं, जनरेटर. जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इन दिस वे द स्टीम एनर्जी और द एनर्जी प्रेजेंटेड इन द सोडियम और सोडियम पोटेशियम और वाटर विच कन्वर्ट इनटू स्टीम कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. द रिएक्टर वेसल, प्राइमरी सर्किट एंड द प्राइमरी हीट एक्सचेंजर हैव टू बी शील्डेड फ्रॉम रेडिएशंस. I told you reactor vessel, primary circuit and primary heat exchanger, इन सभी में रेडिएशंस है. सो हमें क्या करना होगा, इनको शील्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट रेडिएशंस जो है वो जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, पीपल हैं जो वहाँ पर लोग हैं, उनको किसी को भी हार्मफुल ना हो, राइट. द लिक्विड मेटल इज रिक्वायर्ड टू बी हैंडल अंडर द कवर ऑफ इनर्ट गैस लाइक हीलियम to prevent in coming in contact with air while charging or draining in the primary and secondary heat exchangers. What is it mean? देखिए लिक्विड मेटल कौन सी है यहाँ पर, सोडियम. सो सोडियम को या सोडियम पोटेशियम को जब भी आप यूज़ करेंगे, चार्जिंग कर रहे हैं मीन्स उसमें फिल कर रहे हैं या वहाँ से ड्रेनेज कर रहे हैं, सो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ इनर्ट गैस एटमोसफियर बिकॉज व्हेन सोडियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर इट विल बर्न, हाईली केमिकल रिएक्टिव,
right? That's why try to create inert gas atmosphere, और helium is best suitable gas for this purpose. ज़रूरत क्या पड़ी हमें लिक्विड मेटल कोल्ड रिएक्टर की या सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर की? सो व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग SGR, सोडियम गैस रिएक्टर? देखिए, सोडियम एज ए कूलेंट नीड नॉट टू बी प्रेशराइज. अब आप कहेंगे प्रेशराइज तो किया है, 7 बार पे प्रेशराइज किया हमने, यस, उसको प्री प्रेशराइज कर दिया है, राइट. अब बार बार प्रेशराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, 7 बार पर है, दैट्स एनफ. 7 बार, एक बार आपको आपने पहले ही उसको प्रेशराइज कर दिया, अब बार बार प्रेशराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट. ओके. सेकंड, हाई टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड इन द साइकिल. हाई टेम्परेचर अचीव करने से क्या होगा? जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी. सो जितनी ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा लो कॉस्ट एंड पावर जनरेशन विल बी एट लो कॉस्ट. द लो कॉस्ट ग्रेफाइट मॉडरेटर कैन बी यूज्ड एज इट कैन रिटेन इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी एट हाई टेम्परेचर. ध्यान रखिए, ग्रेफाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं मॉडरेटर में, ग्रेफाइट की कॉस्ट काफ़ी लो होती है और ग्रेफाइट जो है अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को और प्योरिटी को हाई टेम्परेचर तक मेंटेन रखता है. इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, एक्सीलेंट हीट रिमूवल, हाई कन्वर्जन रेशो, सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज़ पॉसिबल. आपको मैंने बताया अभी कि स्टीम का जो टेम्परेचर दैट कैन बी अप टू 540 डिग्री सेल्सियस, राइट. अगर स्टीम सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज़ पॉसिबल, इन दैट केस साइज ऑफ द रिएक्टर इज कंपैरेटिवली स्मॉल. So these are the advantages of using sodium graphite reactor. Now we are discussing about the disadvantages of SGR. आपको अभी मैंने कुछ disadvantages बताई थी whenever I was discussing the diagram of SGR. जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम इज अगेन रेडियोएक्टिव मटेरियल एट एलिवेटेड टेम्परेचर, राइट. सो ये भी एक डिसएडवांटेज है. दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर एज वेल एज विद एयर. सो आई हैव मेंशन इट, सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर एंड एयर. ठीक है, तो जहाँ भी सोडियम आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर वाटर और एयर का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए. व्हाट इज इट्स मीन? इट्स मीनिंग ये है कि जो आपने पाइपलाइन से हीट एक्सचेंजर जो भी आपने यूज़ करना है, दैट मस्ट बी लीक प्रूफ. किसी भी कंडीशन में लीक नहीं होनी चाहिए, राइट. इसके बाद क्या, इंटरमीडिएट सिस्टम इज नेसेसरी टू सेपरेट एक्टिव सोडियम फ्रॉम वाटर. शील्डिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कूलिंग सिस्टम विद कंक्रीट ब्लॉक इज नेसेसरी. क्यों नेसेसरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर सोडियम क्या होता है, सोडियम भी रेडियो एक्टिव हो जाता है. सो उसकी रेडियो एक्टिविटी स्प्रेड ना हो, किसी को हार्मफुल ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए आपने क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट की भी शील्डिंग करनी है. मीन्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज देयर. सो हीट एक्सचेंजर मस्ट बी लीक प्रूफ. रीजन इज सेम कि अगर लीक प्रूफ नहीं होंगे तो सोडियम में कम इन कांटेक्ट विद एयर और वाटर, और एयर और वाटर के साथ आने से इट इज़ हाईली रिएक्टिव. लीकेज ऑफ सोडियम इज़ वेरी डेंजरस एज कम्पेयर्ड विद अदर कूलेंट एंड थर्मल स्ट्रेसेस आर ए बिग प्रॉब्लम. सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर में या SGR में, राइट. इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ FBR रिएक्टर, और यू कैन से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. अब देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं. वर्ड दिया है फास्ट. फास्ट का मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन की स्पीड वेरी फास्ट है, राइट. सो हियर वी आर नॉट यूजिंग मॉडरेटर. ध्यान रखिएगा, मॉडरेटर होता तो स्लो हो जाती स्पीड. सो हियर वी आर नॉट यूजिंग द मॉडरेटर. दिस इज द मीनिंग ऑफ फास्ट. और ब्रीडर, इट इज़ यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पज. ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब है कि हमारे पास कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम फिसाइल फ्यूल में, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम 238. यूरेनियम 238 को वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फिजिबल प्लूटोनियम विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शन. सो दैट इज़ नॉन एज ब्रीडिंग. सो इन ये जो रिएक्टर्स होते हैं, इन रिएक्टर्स में ब्रीडिंग इज़ पॉसिबल. सो अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज ए स्मॉल वेसल. यू कैन से इट इज़ ए स्मॉल वेसल इन विच necessary amount of enriched plutonium is kept without using moderator. Important, विदाउट यूजिंग मॉडरेटर. मॉडरेटर नहीं है, मॉडरेटर नहीं है तो क्या होगा, न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत फास्ट होगी. न्यूट्रॉन की स्पीड फास्ट होगी तो इसलिए इसका नाम दिया हुआ है फास्ट. a fissile material which absorb neutron surrounded the vessel. The reactor core is cooled by the liquid metal. अब देखिए क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल जो अभी तो हमारा हाईली रेडियो एक्टिव नहीं है या एट प्रेजेंट विच कैन नॉट टेक पार्ट इन टू द केमिकल रिएक्शंस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
but we can convert that material into radioactive material for the purpose of generation electricity, right? मीन्स ऐसा मटेरियल हमारे पास जिससे अभी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, बट अगर उसमें थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस कर दें तब ये पॉसिबल है। सो ऐसे मटेरियल को हम क्या करते हैं, कोर के या वेसल के चारों तरफ रख देते हैं, ठीक है। और कोर को हीटअप से बचाने के लिए वी आर यूजिंग लिक्विड मेटल एज ए कूलेंट। नेसेसरी न्यूट्रॉन शील्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय द यूज ऑफ लाइट वाटर, ऑयल और ग्रेफाइट, ठीक है। एडिशनल शील्डिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर गामा रेज, कि गामा रेज बाहर आकर किसी को नुकसान न पहुंचाएं, ठीक है। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट व्हेन यूरेनियम 235 इज फिशन इट प्रोड्यूस हीट एंड एडिशनल न्यूट्रॉन्स। क्लियर है। अब देखिए, इफ सम यूरेनियम 238 इज केप्ट इन द सेम रिएक्टर, राइट, सो वो जो एडिशनल न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, दैट एडिशनल न्यूट्रॉन्स जो कहाँ से आए, यूरेनियम 235 के रिएक्शन से आ रहे हैं। दोज एडिशनल न्यूट्रॉन्स are absorbed by uranium 238 and it convert into the plutonium. So plutonium can be used in nuclear power plant for generation of electricity. You can see the chemical reactions. We have chemical reactions. Uranium 238 is here. Whenever one neutron is added, it will convert into uranium 239, right? Then uranium 239 will convert into the neptunium. Then neptunium will convert into the plutonium, and then plutonium, when absorb one neutron, will convert into barium, strontium, etc. And so plutonium, this is the material required. So यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम में कन्वर्जन हो रहा है, आप देख सकते हैं। So reactors in which this reactions takes place, this type of reactors are known as fast breeder reactor. You can say breeder reactor, right? अब देखिए, दिस इज द सर्किट ऑफ FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ऑलरेडी आप देख सकते हैं, देयर इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में लिक्विड मेटल हमने यूज़ किया, दैट इज सोडियम। लिक्विड मेटल हमने यूज़ किया है सोडियम एज ए कूलेंट, राइट। अब सोडियम एज ए कूलेंट है तो इससे डायरेक्ट हीट जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज सोडियम, मैंने आपको बताया, सोडियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। सो वी आर यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। सो दिस इज प्राइमरी सर्किट, this is secondary circuit, primary heat exchanger, secondary heat exchanger, you can see here. So liquid sodium is circulated through the primary heat exchanger and coming back to the reactor, and in the secondary heat exchanger we are using sodium or sodium potassium, which is non reactive, right. And in the secondary heat exchanger we convert the heat of non reactive sodium into the water, and water get converted into steam, through which we can run the turbine and generator, and then this circuit will be complete. You can see a diagram from here also, right. So this is a fast breeder reactor. Now what are the various advantages of using fast breeder reactor, you can say FBR. So we are talking about the advantages. Moderator is not required, clear, moderator is not required, right. High breeding is possible. हाई ब्रीडिंग इज़ पॉसिबल का मतलब हमारे पास जो फिसाइल मटेरियल अवेलेबल नहीं है, सो फिसिबल मटेरियल को फिसाइल मटेरियल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मॉल कोर इज सफिशिएंट, क्लियर है। फ्यूल बर्नअप इज हाई सिंस देयर इज नो एब्जॉर्प्शन रिस्क, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं अगर आप देखना चाहें? कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट एट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बिकॉज देयर इज नो मॉडरेटर। यहाँ पर हमने कहा मॉडरेटर ना होने का एडवांटेज है, बट यहाँ पर ये डिसएडवांटेज भी है। स्पेसिफिक पावर इज नॉट एज हाई। लिक्विड सोडियम इज कोरोसिव एंड रेडियो एक्टिव। हाईली एनरिच्ड फ्यूल इज नीडेड, तो एनरिचमेंट तो हमारे इंडिया में होता नहीं है। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट मेल्टडाउन। सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस, राइट। इसके बाद डियर फ्रेंड्स वी विल टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट वेस्ट। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट वेस्ट होता क्या है? द वेस्ट दैट कम्स आउट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज डेंजरसली रेडियो एक्टिव एंड रिमेन्स रेडियो एक्टिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, राइट। सो ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है, इसको हम स्पेंट फ्यूल भी कह सकते हैं। तो स्पेंट फ्यूल को तो हम वाटर में रखते हैं कई सालों तक, सो दैट उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाए और इसको सेफली डिस्पोज किया जा सके, राइट। These are extremely hazardous and sometimes there is an argument कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्यों? अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करेंगे तो ये वेस्ट मिलेगा आपको, और उस वेस्ट को डिस्पोज करना इज़ ए बिग चैलेंज, बिग प्रॉब्लम।
राइट। अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे न्यूक्लियर वेस्ट अवेलेबल हैं उनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, हाई लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट एंड लो लेवल वेस्ट। तीनों तरह के वेस्ट को डिस्पोज करने के अलग अलग मेथड हैं, कोई भी एक मेथड हम नहीं यूज़ कर सकते, राइट। सो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें, राइट। सो सबसे पहला तो हमारा ये है कि जो इम्पोर्टेंट है कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट ट्राई टू रिड्यूस द ओवरऑल अमाउंट प्रोड्यूस, कि कुछ ऐसा करें कि जो हमारा जो टारगेट है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका जनरेशन ही कम हो। अगर जनरेशन कम होगा तो डिस्पोज हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है, बट स्टिल डिस्पोज तो हमें करना पड़ेगा। सो जो मेथड्स हैं अगर आप ये देखना चाहें तो फर्स्ट मेथड इज इंसिनरेशन, means burning of radioactive waste is largely done through commercially operated incinerators developed for this purpose। अब इसमें क्या, ये बर्निंग का मतलब है इसको लो लेवल वेस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हाई लेवल वेस्ट के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। सो इंसिनरेशन इज कॉमन विद लो लेवल वेस्ट एज दिस मटेरियल जनरली क्या होता है इस मटेरियल में, क्लोथ्स वेस्ट, डस्टिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा, राइट। इसके बाद सेकेंड वन है स्टोरेज। स्टोरेज की बात करते हैं अगर हम, सो ओवर द टाइम रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके, मीन्स देर उनकी जो रेडियो एक्टिविटी वो धीरे धीरे कम होती है। सो स्टोरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इज अगेन देर इज एन ऑप्शन, कब तक, जब तक कि उसकी रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ना रहे, राइट। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से कम हो रही है इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके, एंड इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मटीरियल एंड द लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो बेसिकली क्या होता है कि हर रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक हाफ लाइफ होती है। सो एज पर दैट हाफ लाइफ इसकी रेडियो एक्टिविटी कम होती जाती है। इसके बाद एक और हमारा पास ऑप्शन है दैट इज शैलो ब्रियल। हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल इज हार्ड टू बरी, बट व्हेन इट कम्स टू मिल टेलिंग these remnant can often be buried in a separate specially crafted spot near the mill itself. Often this include creating a pile of tailing, right, covering it with a non-permeable material like clay. The pile is often typically buttressed by a mix of rocks and soil so that it does not erode. ये था शैलो ब्रियल। एक हमारे पास ऑप्शन है डीप ब्रियल। अब डीप ब्रियल क्या है, वेल शैलो ब्रियल कैन बी डन विद लो लेवल वेस्ट। अगर हमारे पास हाई लेवल वेस्ट है उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ वी हैव हाई लेवल वेस्ट वी विल गो द ऑप्शन फॉर द डीप ब्रियल पिट्स। मैनी कंट्रीज विद नेचुरल रिसोर्सेज फॉलो दिस प्रोसीजर ऑफ जियोलॉजिकल डिस्पोजेबल विच कंसिस्ट ऑफ ब्रिंग द मटीरियल डीप विद इन द अर्थ। हाउएवर एज ऑफ नाउ no government that has a facility for this type of disposal, though recently one is created in the Finland. In water, अगर हम कहें वाटर में, इन वाटर का मतलब सी में नहीं है, ध्यान रखिएगा, डीप ब्रियल नहीं है, इन वाटर का मतलब है एट द न्यूक्लियर साइट वी आर हैविंग स्पेशली डिजाइंड पॉन्ड फॉर दिस पर्पज, राइट। सो एट न्यूक्लियर साइट ए कॉमन वे ऑफ स्टोरिंग मटीरियल इन वाटर। So near to all the site a special designed ponds or a special pools are constructed in which this nuclear fuel or spent fuel can be stored, right। इसके बाद एक और है रिसाइकलिंग। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो ये जो मटेरियल है इसको रिसाइकिल करें। सो फॉर सम रेडियो एक्टिव मेटल कैन बी प्रोसेस्ड और एक्सट्रैक्ट फॉर रीयूज। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम एलिमेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ्स, सो दे कैन बी सेपरेटेड एंड रिसाइकल्स। क्लियर है। इसके बाद एक और है द ओशन। ओशन में भी आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं, बट ओशन में क्या है, डायरेक्ट डिस्पोज नहीं करना कि लेकर के यार ऊपर से फेंक दिया ओशन में, इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, इट विल वेरी डेंजरस टू द वाटर लाइफ। जो फिशरीज हैं या वाटर लाइफ है, वाटर में प्लांटेशन है, उन सब के लिए इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस। सो करना क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वेस्ट that is common when waste is produced to extract usable element that is released in the ocean in controlled manner। ध्यान रखिएगा, in controlled manner, unlimited नहीं छोड़ना। you have to calculate the flow of current और कितनी लाइफ वहाँ पर अवेलेबल है
वाटर को चेक करने के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को उसमें रिलीज़ करना है, एंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एक ही डायरेक्शन में रिलीज़ नहीं करना, ध्यान रखिएगा, अलग अलग स्पॉट पर आपने रिलीज़ करना है. सो दिस प्रोसेस इज हाईली कंट्रोल्ड एंड radiation level are deemed to be so low that they are inconsequential. However, recent agreement between companies that rely on nuclear material have phased out this procedure. ठीक है. So आप कहीं भी देखिए ओशन में तो हम तब इसको ड्रॉप कर सकते हैं वेन एवर आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नियर टू बी ओशन, बट इफ आवर पावर प्लांट इज नियर टू बी रिवर और एनी वाटर सोर्स, फ्लोइंग वाटर सोर्स, सो ये जो लिक्विड वेस्ट होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसको हम रिवर में भी रिलीज़ कर सकते हैं, बट विद ए स्मॉल क्वांटिटी, और उसमें भी देखना है कि वाटर का फ़्लो कितना है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, फ़्लो क्वांटिटी, और वहाँ पर वाटर लाइफ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को वहाँ पर रिलीज़ किया जाता है वाटर में, सो दैट रेडियो एक्टिविटी वहाँ वाटर में बहुत ज़्यादा ना हो और इट कैन नॉट बी क्रिएट एनी डेंजर टू द वाटर लाइफ. क्लियर है. इसके बाद डियर फ्रेंड्स वी विल डिस्कस न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया. देखिए अगर मैं इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एट प्रेजेंट 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर वर्किंग इन इंडिया हैविंग टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 7380 मेगावाट. 7380 मेगावाट एट प्रेजेंट हमारी जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, राइट. एंड 12 nuclear power reactor of capacity 9400 megawatt are under construction. So very soon the construction will complete and they will start to generate their electricity. So you can see this is the detail of operational nuclear power plant in India. There is a nuclear power plant in Tarapur, Maharashtra, right, of total generation capacity 1400 megawatt, right. You can say one is in Rajasthan. राजस्थान में कहाँ पर है, इट इज़ इन कोटा. जनरेशन कैपेसिटी इज 1080 मेगावाट. वन इज़ इन उत्तर प्रदेश, नरोरा डिस्ट्रिक्ट, बुलंदशहर, जनरेशन कैपेसिटी इज 440 मेगावाट. एंड टू प्लांट्स आर इन तमिलनाडु, कुडाकुनल एंड कलपक्कम. देन जनरेशन कैपेसिटी ऑफ कुडाकुनल इज 2000 megawatt, while Kalpakkam is 440 megawatt. One is in Gujarat, one is in Karnataka. In Gujarat, Kakrapar is the power station and generation capacity is 1140 megawatt. In Karnataka, Kaiga, there is a nuclear power station at Kaiga where 4 units are there and total generation capacity is 880 megawatts. And you can see in all the nuclear power plant, the operator is NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited. So all the power plants which are generating electricity with the help of nuclear energy, so all the power plants are under Nuclear Power Corporation of India Limited. So dear friends, thank you very much.